नित्यानंदेश्वर समारंभाम् नित्यानंदेश्वरी मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल द devotees, disciples, samajis, satsangis, television viewers, visitors, devotees, sannyasis, brahmacharis, everyone sitting with us through Nityananda TV, Sadhana TV, Lotus News Channel, Janashri TV and Ishwar TV, and through two-way video conferencing in 44 places in 27 countries around the world. Today, Sri 1008 Acharya Mahamandaleshwar of Atal Pita, Atal Akada, Swami Shukadevanand Ji is here gracing us, and Swamiji is the Acharya Mahamandaleshwar of Atal Akada and the senior most Mahatma among all the 13 Akadas. So practically, spiritually, he guides all the 13 Akadas. His decisions, his guidance is the last word in all the 13 Akadas. His words are the final words in all the 13 Akadas. Swamiji is gracefully accepted to visit our ashram, and he is here from yesterday. He is here to bless all of us. So on behalf of me and on behalf of Nityananda Dhyanapitham and Nityananda Sangha, we welcome Swamiji with our humble respects. And if I have to introduce Swamiji to all of you, Sri Swami Shukadevanand Ji Maharaj is the Acharya of the Atal Akada and senior most Mahatma in all the 13 Akadas. At the age of 12, Swamiji received Sannyas Diksha. At the age of 12, he received Sannyas initiation. All great Mahatmas who have contributed, achieved, all of them are Bala Sannyasis. All of them are Bala Sannyasis. Swamiji is also a Bala Sannyasi. From the age of 12, he is living sannyas life, and at the age of 12 he received sannyas initiation. His sannyas guru was Swami Sadananda Puriji Maharaj of Gita Mandir in Haridwar. Swamiji is an adept in Sri Vidya Sampradaya and received his first initiation in Sri Vidya from Kanchi Shankaracharya Sri Chandrasekharendra Saraswati Swamiji from Kanchi Kamakoti Pita, and later had the remaining initiations from his Sri Vidya Guru Swami Vidyashram Ji Maharaj. Swamiji has a vast spiritual knowledge, I tell you. From yesterday I am spending time with Swamiji. Earlier I have had the opportunity of having Swamiji's darshan and sambhashan in two Kumbh Melas in 2007 and 2013. Both the time I have spent quite a good amount of time with him. But from yesterday, when Swamiji is going around the ashram and blessing each department and guiding us, I had the fortune of having the glimpse of vast spiritual knowledge of Swamiji. And I can say, Swamiji is a moving university, he is a mobile university on his own right. He is a living university, mobile university. I can tell you, he is the pride of Hinduism. He is the pride of Hinduism. And
If time permits, I will happily sit at his feet and learn the knowledge of Hinduism. He is the source of spiritual knowledge. Not for praising, I am telling you the honest fact and the truth. He is literally a moving university. And I really have the fear whether the Hindus will recognize his knowledge and use his knowledge by learning from him. Whether we can store all his knowledge in the writing at all, I do not know. And I also strongly feel it should not be lost. It should be, people should learn from Swamiji. I requested Swamiji already to initiate all our sannyasis and brahmacharis and Gurukul kids into the knowledge of Sri Vidya and teach. Come and stay sometime whenever Swamiji can and teach the Sri Vidya Sampradaya, Sri Vidya tradition to all our sannyasis. Not only Sri Vidya tradition is vast spiritual knowledge, unimaginable spiritual knowledge from the age of 12. From the age of 12. Now Swamiji is 75. Then understand the amount of the spiritual knowledge he has gathered from all the cream, best people of Hinduism. I can tell you, he is a moving university, and Swamiji has built a beautiful Tripura Sundari, Maha Tripura Sundari temple, Sri Yantra Mandir, unique in the world in the shape of Sri Chakra in Amarkantak. And for last many years he has continued to expand the temple according to the Tantric tradition of Sri Vidya Sampradaya. In the Tantric tradition, the construction of selected parts of the temple takes place during certain specified periods only. He is also adept in astrology. And yesterday, only few hours Swamiji spent going around. He already studied our land's astrology. He already studied my astrology, and he is very clearly explaining how I am attracted to this land, all the beautiful things going to happen here through us, and everything is so clear. He is adept in Bhairava Vigyan, Prayoga Shastra. He is adept in Tantra Shastra, highly learned. Is deeply respected in India and various parts of the country. The university in Bali is established by his disciples, his followers. He has many students in Bombay, Delhi, Calcutta, Bali, Thai, and Swamiji knows Indonesian languages. That is, Swamiji knows the Indonesian languages. And he travels to Thailand every year, and he is not only expert in Sri Vidya and Tantra, he is also a master of Sanskrit grammar, astrology and Ayurveda, and he is a master in Ayurveda. He went around and saw the Vaidya Sarovar, and he can tell every name of every plant in the Vaidya Sarovar. To tell you honestly, I do not know all the names. I only know few names, whatever the Stapati has told me. But Swamiji can tell every name. Standing in front of every part, he was describing yesterday night what this plant is all about, name, quality, smell, everything Swamiji was describing. As I said, he is a walking university, moving university, and he also possesses the Kayakalpa Vidhan that today is with only few rare masters. This system is used to make the body young again, and I can tell you, when I walk around with Swamiji, I don't feel he is 75 at all. The young, energetic, alive. He has the stick just for the sake of stick. He doesn't use the stick to walk and all.
and the way he was climbing the steps, going up, down, he just got down into the Vaidya Sarovar and went round and came up. I was running behind him. So, Swamiji has enormous knowledge in many, even non-spiritual streams like history, art, architecture, agriculture, music, Indian culture. He has a beautiful mapping done as per the Vastu Vidya for a full-fledged university. And he also owns land in Haridwar to do that university. Now, of course, we will be serving Swamiji in a humble way, whatever little way we can to make that university dream into reality. And today, I really wanted the whole Sangha to listen to Swamiji. All of you are listening to me every day. Today, let us all listen to Swamiji. All the cities, I am calling your name, just wave the hand so that we will check the audio. Los Angeles, Arunachalam. Los Angeles, Arunachalam. Toronto, Kailasam. Ohio, Prayag. Washington DC, Sripuram. East London, UK. Charlotte, Srisailam, Kuala Lumpur, Palani, Guadalupe, Rameshwaram, Varanasi, Houston, Kalahasti, Seattle, Chidambaram, Hyderabad, Bhagyanagaram, Oklahoma, Somanatham, Enriching Temple, Biddi, Phoenix, Kanchipuram, Kastau, Croatia, Tallahassee, Florida, Jorpati, Nepal, Tiruvanmiyur, Tiruvattriyur, Kilinochchi, Sri Lanka, Scottsdale, Arizona, Singapore, Singapuram, Devon, UK, San Jose, Madurai, Port Washington, New York, Oman, Sivagangai, Bogota, Colombia, Dubai, Vaidyanatham, Hyderabad, Guptakashi, Devon, UK, Bangalore, Malleshwaram, New York, Varanasi, Bangalore North, St. Louis, Tirumala, Hong Kong, Sirgari, Indrani, New Jersey, Bangalore, Marattahalli, Scottsdale, Arizona, Auckland, California, San Diego, La Jolla, Colorado Springs, USA, Slovakia, Shivaloka, New Jersey. I welcome all of you with my love and blessings. Now I request Swami Shukdevananda ji to bless all of us to address our whole Sangha. And before Swamiji starts his address, the Tamil Nadu Dhyanapeetham has come here to honor Swamiji. We request Tamil Nadu Dhyanapeetham to come and honor Swamiji. Then Swamiji will grace us. Satyadevan from Tamil Nadu Dhyanapeetham is gracing Swamiji. Nityanandame,
नित्यानंदम आनंदम नित्यानंदमे 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 गोविंद गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन समन्द हसिदेक्षणाम् ससरचावपाशाङ्कुशम् अशेषजनमोहिनीं सरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेत्तं पुरंधर पुरंध्रिका चिकुरबन्धसैरन्ध्रिका पाटीरपटुपाटीरचरचारतां मुकुन्दरमणिं मणिल्लजद्दलग्र्या कारिणीं भजामि भुवनाम्बिकां सुरवधूटिकां चेटिकाम् श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुगत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मण्डलम् वंदे गुरुर्मण्डलम्। मंचस्थ समुपस्थीयमान परमादरणीय प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री श्री परमेश्वर कृपा पात्र श्री नित्यानंद जी महाराज, एवं समस्त आश्रमस्थ सन्यासी वृंद, बाल विद्यार्थी वृंद, भक्त वृंद, साधक वृंद, साधिका वृंद, आज मुझे आपसे कुछ बातें करने के लिए विश्व में बैठे हुए सभी आप सब साधकों के साथ कुछ संवाद करने की इच्छा हुई, और न जाने परमेश्वरी की क्या इच्छा है जो दीपावली के पश्चात यहाँ आप सबों के सानिध्य में मुझे ले आए हैं। ये भी कोई महान तीर्थ या परमेश्वर की कृपा है। आज मैं मानव जीवन के कैसे जिया जाए, मानव जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे इसे जीने की कला है, और इसमें वैदिक मंत्र वेद हमें क्या कहते हैं, एक मंत्र की का मैं पाठ करूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। यह प्रधान है। तो वेद मंत्र इस प्रकार है। आचार सूक्त है ऋग्वेद का, जिसके विषय में मैं आपको 30वां मंडल है, और 30वें मंडल की ये चौथी ऋचा है।
आचार्य अपने शिष्य को, स्नातक को ये आज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्ति बंधामनुचरे महा सूर्य चंद्रमिवांभसि पुनर्ददता जानता अघनता संघमे मही। मंत्र बहुत स्पष्ट है, इसे आप भी कह सकते हैं, मैं धीरे धीरे कहता हूं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, आप बोलिए स्वस्ति पंथा, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्य चंद्रमिवांभसि, सूर्य चंद्रमिवांभसि पुनर्ददता जानता संघमे मही, पुनर्ददता जानता अघनता संघमे मही। ये मंत्र है। मंत्र किसे कहते हैं? किसी को अपना मानकर उसे उचित, प्रिय, आत्मा की उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए, कि कोई धर्म वह धर्म नहीं है, कोई अध्यात्म वह अध्यात्म नहीं है जो भौतिक श्रेय न करता हो और जो निश्रेयसत्व को न देता हो। धर्म की व्याख्या करते हुए वैशेषिक दर्शन कहता है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सधर्म। भौतिक अभ्युदय होता हो तो मंत्र कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम, अये मानव तू अपने पथ पर चल। You follow your path. You don't do just like animal and Rakshasa. You do your work and do right path. Swasti, swa asti, swa iti atmani hi। जो तुम्हें तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारे गुरु के द्वारा, तुम्हारे ऋषि के द्वारा, तुम्हारी परंपरा में प्राप्त है, जो मार्ग, उस मार्ग पर चल। स्व अस्ति इति पंथा अनुचरेम, चलना प्रारंभ कर, उस पर चल। कैसे चल? जैसे सूर्य चलता है, सूर्य चंद्र मिवंभसी, सूर्य के जैसा चल। चाहे सूर्य को कोई अर्घ्य चढ़ाता हो, पूजन करता हो, तो भी सूर्य किसी के लिए रुकता नहीं, वह अपने पथ पर चलता ही रहता है। सूर्य चाहे दोपहर हो चाहे सायं हो, अपने समय पर उदित होता है, अपने समय पर अस्त होता है। सदा सदा इस संसार में गुड मॉर्निंग ही रहती है। पूरे यदि संसार को देखें तो कहीं भी सूर्य अस्त नहीं होता है, हर जगह कहीं न कहीं सूर्य का उदय होता ही रहता है। और मानव को यही वह संदेश देता है, जैसे मैं सदा सदा चलता रहता हूं, वैसे तुम भी, ऐ मेरे मनुष्य, तुम भी चलते रहो, लेकिन स्वस्ति पंथा मनुचरेम, अच्छे पथ पर चलो, कल्याणकारी पथ पर चलो,
चलो, निरंतर चलो, जैसे सूर्य चलता है ऐसे चलो। आपने कोई शंका होती है कि सूर्य तो बहुत तपित करता है, तप्त करता है, सूर्य बहुत गर्मी करता है, किसी को तो बड़ा सुख देता है। धोबी लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरे कपड़े सूख जाएंगे, जल्दी जल्दी ग्राहक को दे दिया जाएगा, इसलिए सूर्य को देख करके बड़े खुश होते हैं। ठंडी देश में जहां बर्फ है वहां सूर्य को तप्त होने के लिए स्वयं सारे कपड़े खोल करके सूर्य के सामने पड़े रहते हैं, लेकिन गर्म क्षेत्रों में सूर्य के बचने के लिए उपाय करते हैं। तो क्या ऐसा बनना चाहिए? ऋचा कहती है सूर्य चंद्र के जैसे चलो। चंद्र कैसे चलता है? किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, अमावस्या हो, पौर्णिमा हो, चंद्रमा घटता हो, क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता। क्षय और वृद्धि भले ही हो परंतु उस मार्ग में सतत चलो। किसी भी परिस्थिति, एनी कंडीशन, एनी ट्रबल कैन नॉट स्टॉप यू, योर पाथ। हमेशा हमेशा आपको सतत चलते रहना है, जैसे चंद्रमा चलता है, किसी भी विघ्न से निर्विघ्न होकर के अपने गुरु द्वारा, अपने शास्त्र द्वारा, अपने धर्म द्वारा निर्देशित जो पथ है, निर्देशित जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसी पर चलना है। मानवत्व की विस्मृति नहीं करनी है। मानवत्व का वृक्ष, मानवत्व का अमृत जो सतत आपको अनुस्यूत रूप से प्राप्त हो, ऐसा मार्ग चलना है, निरंतर चलना है। चरैवेति चरैवेति चरणातम अमृतम मस्नुते। जो चलता रहेगा वही लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। जो हार कर थक कर बैठ जाएगा वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए चलना सीखो जैसे सूर्य चलता है। अरे चलना सीखो जैसे चंद्र चलता है। और मंत्र में एक और बात कहता है कि देखिए, आहा कितना सुंदर कहा है, सूर्य चंद्र मिवांभसी स्वस्ति पंथा मनुचरेम। सूर्य चंद्र मिव अंभसी, अंभसी कहते हैं सरिता को, नदी को। गंगा गंगोत्री से चलती है। कितने कितने अवरोध मार्ग में आते हैं, पत्थर आते हैं, लोग घंटी बजाते हैं, लोग पूजा करते हैं, लेकिन गंगा रुकती नहीं। वह सतत बहती चलती है, सतत प्रवाहित होती चलती है, सतत अपने मार्ग पर बढ़ती रहती है और आगे चलती है। किसी ने पुष्प चढ़ाया, गंगा उसके लिए रुकती नहीं। किसी ने दूध चढ़ाया, गंगा उसके लिए रुकती नहीं। किसी ने दीप जलाया, गंगा उसके लिए रुकती नहीं है। गंगा सतत अपने प्रवाह में प्रवाहित रहती है। अंभसी मिवह गतितव्यम सर्वदा। जैसे नदियां चलती हैं वैसे तुम चलो। ऐ मानव तू अपने पथ पर चल। कैसे चल? जैसे सूर्य चलता है। कैसे चल? जैसे चंद्र चलता है। और कैसे चल? जैसे सरिता चलती हैं, नदियां चलती हैं। वेग से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैं और बढ़ती 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 चलती चलती सिंधु में समा जाती हैं। अपना नाम रूप खोकर, अपनी सीमाओं को लांघकर, सारी सीमाओं को तोड़कर, सारी सीमाओं को समाप्त कर महासिंधु का रूप, आत्म रूप, विश्व रूप धारण कर लेती हैं। यही तो तुम्हारा गंतव्य है, यही तो तुम्हारा मानवों का प्रधान लक्ष्य है।
अगले पाद में ऋषि कहते हैं कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मिवाम्भसी। अब कहते हैं कि चलो जरूर, लेकिन एक काम करो, पुनर्ददता, जानता, अघनता, संघ में मही, 4 का बातें बताई गई हैं। चलते चलते तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास हो, तन है, मन है, धन है, वचन है, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम देते चलो, ददता, दान करते चलो। क्योंकि कुछ लेकर नहीं आए हो और कुछ लेकर नहीं जाओगे। You do something for other. You help for other. Don't do for self. Yourself, not yourself. कल मैंने कहा था कि ये बॉडी नहीं हो तुम माइंड भी नहीं हो। यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट बुद्धि। जब आत्मस्थिति को, परमात्म स्थिति को देखोगे तो सभी में तुम हो, तुम में सब कुछ है। सर्वं च मयि पश्यति मां पश्यति च सर्वत्र तेषामहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। प्यार जब उमड़ता है मां के हृदय में, तो अच्छी वस्तु उसे जो अच्छी लगती है वह चुनकर अपने पुत्र के लिए रख लेता है, दूसरे के लिए रख लेता है, अपने मित्र के लिए रख लेता है। आहा, मेरा मित्र होगा, मैं उसे दूंगा, बड़ी अच्छी वस्तु है। तो चिंता करता है वो दूसरों के लिए। जब जब तुम में दैवत्व का अवतरण होगा तब तब तुम दान करोगे, याद रखो। जब जब तुम में राक्षस और पशु होगा तब तब तुम छीनना शुरू कर दोगे। तुम में बंदर का अवतरण होगा, तुम दूसरों का छीन लोगे, खा लोगे, लूट लोगे। तुम में जब दैवत्व की उत्पत्ति होगी, तुम में दैवत्व की स्फुरणा होगी, जब तुम अध्यात्म में चलोगे, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की अर्चना करने के लिए, पूजन करने के लिए तुम्हें देवता बनना है। और ददाति इति देवता, जो देता है उसी का नाम देवता है, जो लेता है उसका नाम देवता नहीं होता। ददाति इति देवता। तो यहां मंत्र कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मिवाम्भसी पुनर्ददता। तो प्रथम गुण क्या होना चाहिए? तुम में दान का गुण होना चाहिए, देने का गुण होना चाहिए। फिर दूसरा गुण होना चाहिए जानता, सीखते चलो। हर नित्य, एवरी टाइम यू आर स्टूडेंट, यू आर साधका। नॉलेज जहां से भी तुमको मिले, ज्ञान जहां से भी मिले, जानते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया था। इसी तरीके से गुरुजनों से, क्योंकि गुरु किस रूप में, कहां से, वृक्ष से, पक्षी से, वो कुत्ते से और कन्या से और मधु से, सर्प से, सबसे गुरु की अभिव्यक्ति होती है। सब तो हमें शिक्षा देते हैं, एक वायु भी हमें शिक्षा देती है। मैं तो एक दिन अपने जीभ को गुरु बनाया, अपनी जीभ, टंग को गुरु बनाया। क्या कितनी अच्छी है। अभी हमने खीर खाया, बड़ा मीठा लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जीभ मीठी नहीं है। मन में उसकी स्मृति है, लेकिन जीभ में कोई मिठास नहीं है। जीभ बिल्कुल स्वच्छ है। अभी ये मिर्च खाया, लेकिन थोड़े देर के बाद में वह नष्ट हो गया, वह स्वच्छ हो गया, उसके पास कोई स्मृति नहीं है, वह जीभ तो स्वच्छ है। इसी प्रकार
ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें सदा करनी है। जानता, पुनर्ददता जानता, लेकिन एक और बात कहा इस मंत्र में, अघनता, अघनता, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। अब ये स्टडी करे, ये जरा सा रिसर्च विषय है। तो प पा प हमने मातृकाओं पर मैं रिसर्च कर रहा हूं और वो पुस्तक थोड़े दिनों के बाद में आप सबों के पास आएगा। एक अक्षरी कोश है, पकारम पवर्ग वर्जितम, पवर्ग वर्जितम स्वर्गस्य सुखम, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। पवर्ग, पवर्ग में प फ ब भ म, मन का नाम क्या है? मन, हाँ? मन हमारे पास है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जो है मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन ही कैसे बंधन का कारण होगा और मुक्ति का कारण होगा? एक औषधि है, या तो वो जिला देगी या मार देगी, लेकिन एक ही औषधि में दोनों गुण कैसे होगा? लेकिन दोनों गुण है। ये मन ही एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोर, कैसे? अघनता, उसी की व्याख्या है मन से। तो मन न जब हम कहते हैं तो म से उल्टा पाठ न है। म से न पढ़ने के लिए हमें म से भ पढ़ना पड़ेगा, फिर भ के बाद में ब आएगा, ब के बाद में फ आएगा, फ के बाद प आएगा, फिर उसके बाद न आएगा मातृकाओं में पाठ करने में। म का मतलब होता है मोह। मन, मन का पाठ कर रहे हैं। म का अर्थ होता है मोह, किसी से अट्रैक्शन होना। बुरा नहीं है, अभी बताता हूं। तो किसी से मोह होना, मोह यदि हुआ तो वह हमसे अलग न हो जाए इसकी चिंता हो जाती है। तो मां के बाद में क्या हो गया? भय हो गया, भ। और जैसे ही भय हो गया तो जो जिससे, जिस पिंड से भय हुआ है उससे विद्वेष उत्पन्न हो जाएगा, ब। जब विद्वेष से उत्पन्न हो गया तो हम फरेब की रचना करने लग जाएंगे, छल की रचना करने लग जाएंगे, प। और फरेब की रचना करने में हमको पाप, हमसे पाप हो जाएगा, प। और उसके बाद आ गया न। सब कुछ नहीं है, सारी क्रियाएं खत्म हो गई। अब इसको उलट दें, उलट दें, सीधा पाठ करें। न से म की तरफ। अब तक हम मन के अनुसार चलते थे, अब मन को उल्टा कर दें तो क्या हो गया? नम। नम का अर्थ हुआ नमस्कार, नमः का आकार, नमस्य आकारम इति नमस्कारम। नम आकार, नमन कर दो। किसको? अब किसे करना है वो तो बाद की बात है, परंतु न से म का पाठ करो। न प, अब न माने नहीं है, क्या? प माने पाप। न प है, पाप नहीं है तो फरेब नहीं होगा, और फरेब नहीं है तो विद्वेष नहीं होगा, विद्वेष नहीं है तो भय नहीं होगा, और भय नहीं है तो मोह भी नहीं होगा। आपका मोक्ष हो गया। कारणम बंध मोक्षयोर। आप तो हिंदी बड़ी अच्छी समझते हैं। तो ये मन की बात जब उन्होंने कही, अघनता, मंत्र कहता है कि पाप से रहित होकर चलो, पवर्ग से रहित हो जाओ। मन से मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। क्या आश्चर्य की बात है। मेरे में मन मना भव मध्याजी मामये वै नमस्कुरु मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। तो ये मंत्र कहता है, वेद मंत्र कहता है कि ऐ मानव तू ऐसे चल जैसे कि सूर्य चलता है, जैसे कि चंद्रमा चलता है। ऐ मानव तू चल जैसे सरिता चलती है, लेकिन ऐसे चल, कुछ सीखता चल और पाप रहित होकर चल, पाप मत करना। लेकिन अंतिम में आचार्य कहते हैं, अंतिम में ऋषि कहते हैं, अंतिम में मंत्र कहता है पुनर्ददता देते हुए चल, जानता जानते हुए चल और अघनता पाप रहित होकर चल। और इसके पश्चात कहते हैं संघ में मही एक साथ होकर चल। यहां आप सब जो एक साथ बैठे हैं, ये आप सबों का एक साथ होना, अनंत आत्माओं का मिलन होना, अनंत जीवों की एक भावना का संघट्ट रूप होना। भावे न तो भावे विद्यते देवा न तो पाषाणे मृडमये। जानते हो देवता में प्रतिष्ठा कौन करता है? तुम्हारी भावना ही करती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वास्तविक में यह विश्व की विशिष्ट क्रियाएं हैं। ये सब संचालित एक परम शक्ति के द्वारा होती है। उस परम शक्ति के द्वारा संचालन हो रहा है। यह जो जंगल था, इस जंगल में उस दिव्य शक्ति ने इस भूमि के भाग्य में हमारे आचार्य श्री महामंडलेश्वर श्री जी, श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज को यहाँ ले आए। ते तेनैव वृणुते, श्रुति है, वेद मंत्र है, ते तेनैव वृणुते। वह उसको चुनता है। कहां हो, कहां हो, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ और इसके भाग्य को पुनर्जागृत करो, इस भूमि के भाग्य को पुनर्जागृत करो। कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह ज्ञान कालेन महता नष्टो योग परंतपा। ये काल के प्रभाव से नष्ट हो चुका था। अब इस नष्ट संस्थान को पुनरुत्थापित करना है, तो इनको बुला लिया। तो इनके सानिध्य में मैंने देखा कितनी क्रियाशीलता है। एक योगी, एक सन्यासी, एक निष्ठावान ज्ञानी, एक आत्मपरग व्यक्ति क्यों ये दुनिया के प्रपंच में पड़े, क्यों बिल्डिंग बनाए, क्यों मंदिर बनाए, क्यों भीड़ लगाए? अरे ये पीड़ा है, जीवों के प्रति पीड़ा है। जो मैंने मिठाई खाया है वो सबको खिलाना है, ये पीड़ा होती है। और इस पीड़ा को बांटना है। ये जो दर्द उठता है, ये जो स्नेह उठता है, मां के स्तनों में प्रसूनवती यथा माता तथैव गुरु भावना, जैसे प्रसूनवती सद्य प्रसूना जो मां है, उसके स्तनों में जैसे दूध भरकर टपकने लगता है अपने शिष्य को देखकर, ऐसे ही करुणाद्र गुरु अपने शिष्यों को, जीवों को, दुखियों को देखकर आर्द्र हो जाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और अध्यात्म का अमृत बंटन करते हैं। और उसके लिए सरोवर, उसके लिए मंदिर, उसके लिए
दानशाला, उसके लिए भोग्यशाला, उसके लिए कार्यशाला, निरंतर आपकी सुविधा के लिए सारी की सारी चिंतन करना, ये सचमुच में एक करुणामयी मां की, इस करुणामय गुरु की ही कृपा होती है। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और यथार्थतः कुछ हमारा स्वभाव है कि मैं अमरकंटक से कहीं ज़्यादा निकलता नहीं। पहले बहुत घूमा हूँ, सारे विश्व का भ्रमण कर लिया, जितना देखना था सब देख लिया हूँ, अब देखने को कुछ बचा नहीं है। अब अपनी स्वानुभूति का ही लेखन चलता रहता है। उपासना और शास्त्राध्ययन और अध्यापन के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है। परंतु इतने अच्छे योगी महापुरुषों को देखकर हमें आनंद होता है कि अब विश्व में इतने केंद्रों को उपदेशित करके सबके जीवन को सुधार रहे हैं। कलम ने वो संपर्क सूत्रों को देखा, मुझे यहाँ के संपर्क सूत्रों से सारे विश्व में कितने दुखी, कितने पीड़ित, कितने बेचारे, उनके आंसू पोंछना और उन घर घर में संवाद के द्वारा केवल वाणी से आप पुण्य कर रहे हैं, महान पुण्य कर रहे हैं। और ये मार्ग किसने, हाँ, ये प्रेरणा जो दे रहे हैं गुरुदेव, इनकी प्रेरणा से आप सब जो कर्म कर रहे हैं, ये अपने जीवन का कल्याण हो रहा है, आपके जीवन का आनंद हो रहा है। इसलिए मैं गदगद हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के आप सबों के बीच में। मैं पुनः प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। और पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी जी का और तुरानंद जी एवं समस्त सन्यासी वृंद, समस्त साधक वृंद, समस्त जो विद्यार्थी वृंद हैं गुरुकुल के और समस्त साधक वृंद हैं। मैं कहता हूँ कि आप पर निरंतर गुरु कृपा, भगवान सर्वेश्वर की कृपा, राजराजेश्वर भगवान की कृपा, राजराजेश्वरी माँ की कृपा सतत वृष्टि हो। आप सदा अध्यात्म की ओर उन्नति करें और भौतिक संसार में भी आप श्रेयस कर रहे हैं। लेकिन देखो ना, हायर वैल्यू में लोअर वैल्यू समाहित रहता है। 100 रुपया में 1 रुपया रहता है। मोक्ष है, मोक्ष की साधना में ही अर्थ की साधना रहती है। हाँ, लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, वो आपके चरणों के, आपके यहाँ तो बरसेंगी। ये तो देख रहे हैं, आप तो प्रत्यक्ष इस आश्रम में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने भी देखा है। हम तो जंगल में बैठे थे अमरकंटक में, वहाँ भी यही स्थिति है। मैं किसी से कभी भी कोई संपर्क नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ बड़ी कृपा लक्ष्मी जी की रहती है। तो आप सब बड़े आनंदित हों, बहुत सुखी हों, बहुत प्रसन्न रहें, यही भावना के साथ पुनः आशीर्वाद देता हुआ, मंगल कामना करता हुआ आप सबों के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। So we sincerely thank Swamiji on behalf of me and Dhyanapeetham for blessing all of us, gracing us, for all his kind words and his grace and support. We are all really honored that Swamiji accepted to come here, stay with us and bless all of us, giving his time, blessings. And I have no other words to thank Swamiji for his graceful presence. Maybe I will request Turiya to give the translation of what I spoke in Hindi and what Swamiji spoke in English.
नित्यानंदम। तो स्वामी जी ने आचार्य जी का आज स्वागत किया है। परम पूज्य श्री शुकदेवानंद जी महाराज जो अटल अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके स्वागत में उनका परिचय देते हुए स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार से शुकदेवानंद जी जो हैं वो सभी 13 अखाड़ों में सबसे प्रमुख, सबसे सीनियर मोस्ट संत महात्मा हैं, और जो कहीं पर भी नहीं जाते हैं वो हमारे आश्रम में पधारे हैं। हमको उन्होंने कृतज्ञ किया है अपनी उपस्थिति से। और किस प्रकार से श्री विद्या हो, चाहे भैरव ज्ञान हो, चाहे तंत्र शास्त्र हो, अनेक अनेक आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, और साथ ही साथ उनके पास अथाह ज्ञान का सागर है। चाहे सांख्य विज्ञान हो, वेदांत हो, अखाड़े का शास्त्र हो, भारतीय संस्कृति परंपरा, आयुर्वेद, अटल अखाड़े के आचार्य जी शुकदेवानंद जी जो हैं परम पूज्य महात्मा हैं और भारत के लिए एक महान विभूति हैं। भारत की एक परंपरा को जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, जिस ज्ञान को उन्होंने रखा हुआ है, वो हम सभी के लिए आदरणीय है और हम सबको उनसे सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने अटल अखाड़े के आचार्य श्री का सम्मान किया है और उनसे 2 शब्द बोलने का आवेदन किया। आचार्य परम पूज्य आचार्य जी शुकदेवानंद जी ने हमको कुछ शब्द में अपना ज्ञान जो है उसको दिया और बताया इस प्रकार से जो मनुष्य अपने मन के एक प्रवाह में फंस जाता है, वो केवल 2 शब्द जो है मन के, माँ से ना, उसको अगर दूसरी तरफ से पलट के देखे, ना से माँ यानी कि नमा, तो मैं इसको अंग्रेजी में करूंगा। स्वामी जी सेड, पूज्य आचार्य जी अटल अखाड़ा आचार्य जी स्वामी जी said कि if the man just moves from the 2 words of mana, which is M-A-N-A, mana, and goes in the other way, which is nama, N-A-M-A, bows down. So all the vikaras, all the sanskaras which come with the feeling of mana goes away with the feeling that he is bowing down, nama. The things like vidvesh, bhay, all those sanskaras will completely dissolve if one has the feeling of nama or bowing down. So that is what Acharya ji is telling us, that we should cultivate the feeling of nama or bowing down. And by that we can just get rid of all the sanskaras, all the vikritis which come in the form of mana. Because after all, what are we? We are body and mind. So to get rid of the mind and the sanskaras, bowing down or namaskara is the right way. Then Acharya ji is saying that in Gita also, how Krishna tells that you should keep giving and moving and learning and being sin free. If all of us are together as a sangha, then so much big work can be done. So Acharya ji gives the example of Swami ji, that how Swami ji is doing some beautiful work, so much work for the Vedic Dharma. It is happening only through the divine presence of Swami ji, and how this land is blessed that it has attracted an energy, an incarnation like Swami ji to bless this land and carry on the great work which is happening all over this land, this kshetra of Bidadi. So much good work is happening all over Bidadi. Acharya ji, Puja Acharya ji Shukdevananda ji is surprised and shocked to see that. He has visited all the saints and Mahatmas all over India and all over world, but he has hardly come across somebody who is as kriyashil or who is as active yogi as Swamiji Nityananda. He says Swamiji is a living example of how spirituality and action can be combined together for the benefit of the world. How great things are being done in this ashram, whether it's sacred arts or Gurukul or the herbs, the Veda Sarovar, every single field. He's saying just the intention with which Swamiji is working is amazing. So much great work is happening because of that intention and the great divine presence of Swamiji. In the end, Acharya ji says that we should all work together and learn from Swamiji, and in his great presence, we should move by ever giving, move by being sin free, move by keeping your yearning and learning alive all the time, and move by being in the Sangha together and working for the spiritual cause. Thank you.
So, whatever introduction I gave, welcome speech I gave, he translated in Hindi, and whatever Acharya spoke, he translated in English. You got the essence. But one important point, 3 I forgot to translate. I wanted to remind again, if I find time, I'll sit happily at the feet of Swamiji and learn more about Hinduism and more spiritual tradition. Because his knowledge and the way he recites mantras left and right, and the way the understandings he carries about the mantras. Today morning, he was speaking about how Buddha was initiated into the tradition of Tara, Vasishtha Sampradaya and Tara worship. And he was chanting those mantras. I could see he is an adept, the master of the science of mantras. And I am stating the fact, I have seen enough of sadhus and mahatmas all over India, throughout my wanderings and all over the world in my travels, but I cannot compare anyone to Swamiji. Swamiji is unique, and his knowledge, the science of mantras, yantras, astrology, Vastu, Ayurveda. See, I have seen many sadhus mastered one branch, one sampradaya. But Swamiji is a master in so many sampradayas, almost in all major knowledge traditions of Hinduism. So we offer humbly our respects to Swamiji once again, and request Swamiji to bless the Gurukul separately.